Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This lecture is in continuation of the previous lecture on the statement of cash flows. Today I will try to explain to you how to calculate the cash flows from the operating activities using the direct method. We use an illustration here. I think you have these notes because I have already shared these notes with you. So you can use these notes while listening this lecture. You know that we have identified three major sources of cash inflows in the operating activities. Cash received from customers, cash received from interest, and third was the dividend received. And the cash outflows, cash paid to suppliers for inventory purchases, cash paid to suppliers for other goods and services such as office supplies, advertising, and utilities, cash paid to employees for salaries and wages, cash paid to creditors for interest, cash paid to government for taxes. So in this lecture, I will try to explain you how we can calculate the cash inflows from these sources and cash outflows. For that purpose, I am using this illustration to illustrate the direct method of presenting net cash flow from operating activities, assuming that PMX Corporation's income statement for 1990 and selected comparative balance sheet data as it is shown in the figure 1. This is figure 1. PMX Corporation income statement for the year ended December 31st, 1990. And we are preparing a statement of cash flows for the at the end of December 31st, 1990. So in income statement, first it is shown sales 694,000, cost of goods sold, then gross profit from sales. We assume that all sales is on credit. Then operating expenses, salaries and wages, depreciation, advertising, repair and maintenance expense, insurance expense after the total operating expenses. Income before income taxes, then income tax expense, and at the end net income. Selective comparative balance sheet data for 1990 and 1989 are as follows. Accounts receivables 1990 is the closing balance, December 31st, 1990. And December 31st, 1989. 1989 is opening balance for this accounting period, and 1990 is the closing balance for this accounting period. So accounts receivables balances both inventory, prepaid insurance, accounts payable, accrued salaries and wages payable, accrued income taxes payable. First, first I will explain you how to calculate the cash received from customers. When we made sale or credit, we generate accounts receivables. Sales. How much sales? In this year, we have made $694,000 of sales. And how much in accounts receivables in opening and closing? We have almost $169,400 in the closing balance and $147,300 in 1989, means opening balance. So cash received from customers will be equal to accrual based sales, because we assume that all sales is on credit. So it is accrued sales, accrual based sales, plus we add in accrual based sales opening account receivables, beginning account receivables, and less ending account receivables. Opening account receivables plus accrual based sales equals to the total receivables, and then we less the ending account receivables. We can calculate how much cash is received from customers. ये आपको नज़र आ रही होगी एक्रूअल बेस्ड सेल्स फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट. हमने इनकम स्टेटमेंट को यूज़ किया और हमने देखा कि हाउ मच वाज सेल्स. इट इज़ $694,000. तो सबसे पहले हमने जो है वो सेल्स लिखी कि $694,000 की. इसमें हमने ऐड कर दिए हैं ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी 1989 का जो बैलेंस था
वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ये वो बैलेंस है जो 1989 की एंडिंग अकाउंट्स एंडिंग बैलेंस शीट के अंदर जो शो हो रहा था। तो ये वो बैलेंस है जो कि अभी रिसीव नहीं हुआ, जो कि ऑब्वियस है कि इस साल में रिसीव होना चाहिए। तो जो टोटल रिसीवर्स बनते हैं, अगर हम इस साल जो हमने सेल की है क्रेडिट, वो है 694,000। और जो हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग है और इस साल का जो ओपनिंग है, यानी जो कि रिसीव होने हैं अभी, तो वो टोटल रिसीवेबल्स हो जाएंगे इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे। तो कैश कलेक्टेबल फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा, टोटल कैश कलेक्टेबल फ्रॉम कस्टमर्स, ये अमाउंट। अगर इसमें से हम लेस कर देते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल्स का, यानी 1990 की जो बैलेंस शीट में हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल की जो अमाउंट शो हो रही होगी, उसको अगर हम इसमें से लेस कर दें, यानी ये वो रिसीवेबल्स हैं इन टोटल रिसीवेबल में से जो कि हमें रिसीव नहीं हुए, सो दे आर स्टिल ड्यू। तो जो वो इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, अक्रूवल बेस्ड जो भी सेल्स है, यानी क्रेडिट सेल्स प्लस ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स लेस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। इसी तरह जो भी रिसीवेबल होगा, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट जो आपने रिसीव करना था, उसमें अगर आपके पास वो इंटरेस्ट की एक इनकम पड़ी हुई है इनकम स्टेटमेंट में, और इसी तरह अगर उसका रिसीवेबल का कोई बैलेंस हमारे पास क्लोजिंग में है, या इस साल की या पिछले साल की क्लोजिंग में था जो कि इस साल की ओपनिंग है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होगी। ये इंटरेस्ट रेवेन्यू में ऐड करेंगे ओपनिंग और लेस कर देंगे क्लोजिंग, तो हमारे पास कैश रिसीव्ड आ जाएगा जो हमने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो हमें रिसीव हुआ। दूसरी तरफ आए जो कि आउटफ्लोज हैं, कैश पेमेंट्स में सबसे जो मेजर्स जो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया था वो परचेजेस का है, या आपने इन्वेंट्री परचेज की, क्योंकि जो भी बिजनेस का कोर बिजनेस उसका वो इन्वेंट्री, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, और अगर मर्चेंडाइजिंग है तो फिनिश गुड्स को परचेज कर रहा होगा। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि ये बिजनेस जो है ये नॉर्मली एक्रूवल बेस्ड होते हैं, यानी क्रेडिट के ऊपर काम करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो परचेजेस गिवन होंगे एक्रूवल बेस्ड परचेजेस, उससे फिर हमने ये निकालना है कि हमने कितना पे किया था इस साल अपने सप्लायर्स को। तो कैश पे टू सप्लायर्स पर परचेजेस निकले। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी होगी वो परचेजेस फाइंड करनी होगी कि हमने कितनी परचेजेस जो है वो इस साल की। और परचेज हमें कैसे पता चलेंगे, हम वापस जाएंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन की तरफ, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री शो हो रही होगी, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री 109,500 है और क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास 101,600 है। ओपनिंग इन्वेंट्री ये है और क्लोजिंग ये है। कितनी इन्वेंट्री इस साल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो गई, ये हमारे पास $316,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है कि आपने इस साल जो सेल की है, जो गुड्स आपने बेची हैं, उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर वो मर्चेंडाइजिंग है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर परचेजेस गिवन ना हो तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी को आप रिवर्स कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो एंडिंग लेस की थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एंडिंग इन्वेंट्री लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, आपके पास परचेजेस आ जाएंगे। हम ये एज्यूम कर सकें कि बिजनेस जो है क्योंकि क्रेडिट के ऊपर बिजनेस कर रहा है, तो जो परचेजेस हैं ये क्रेडिट के ऊपर होंगे, तो हमने उसे कहा क्रेडिट परचेजेस। अगर गिवन हो कहीं पे ये कैश है तो हम उसमें से पोर्शन अदा कर लेंगे, लेकिन अगर क्रेडिट परचेजेस है तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री और लेस कर देंगे उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस किया हमने एंडिंग इन्वेंट्री, लेस माइनस कर दिया हमने ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ गया एक्रूवल बेस्ड परचेजेस। हमने निकालना है कि हमने कितना कैश पे किया। अगर हम परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो क्या चीज़ जनरेट होगी, अकाउंट्स पेएबल जनरेट होगी। अकाउंट्स पेएबल की हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अगेन हम जाएंगे जो बैलेंस शीट होगी जो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, एक 89 ईयर के ऊपर और एक 1990 के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेएबल का बैलेंसेस गिवन होंगे। 74,200 जो है वो क्लोजिंग में है और 81,600 वो ओपनिंग बैलेंस में। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1989 का जो बैलेंस है क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ये वो अमाउंट है जो आपने अभी तक पे नहीं की है। अगर ये पे नहीं की है तो ओपनिंग बैलेंस में है तो ये इस साल आप पे करेंगे क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज होती है, तो ये आपने इस साल पे करना है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 1990 के एंड पे शो हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपने इस साल, वो पिछले साल आपने पे नहीं किया था, ये इस साल आपने जो अमाउंट पे नहीं की है, तो ये अकाउंट्स पेएबल के क्लोजिंग बैलेंस में आपको शो हो रहा है। अब हमने ये निकालना है कि हमने कितनी पेमेंट की है सप्लायर को फॉर परचेजेस। तो इसमें पहला स्टेप ये था कि हमने एक्रूवल बेस्ड परचेजेस डिटरमिन कर लिए। हाउ वी कैन डिटरमिन द एक्रूवल बेस्ड परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड एंडिंग इन्वेंट्री लेस ओपनिंग इन्वेंट्री। हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस। और क्रेडिट परचेजेस अब उसको हम यूज़ करें, हम निकालना क्या है कि हाउ मच कैश इज पेड फॉर परचेजेस। तो हम क्या करेंगे, एक्रूवल बेस्ड परचेजेस में ऐड कर देंगे ओपनिंग अकाउंट्स पे, तो क्या हो जाएगा, टोटल पेएबल्स निकल आएंगे। ठीक है, एक्रूवल क्योंकि एक्रूवल बेस्ड था, जो हमने इस साल हमने परचेजेस किए हैं इस साल, वो परचेजेस हमने वहाँ पे लिखा, उसमें ओपनिंग अकाउंट्स पेबल ऐड कर दिए, तो ये आ जाएगा टोटल पेबल्स इन दिस ईयर। और जब हमने ये देखा कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड स्टिल हाउ मच अमाउंट इज ड्यू इन अकाउंट्स पेबल, तो वो हमने उसमें से लेस कर दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश पे टू सप्लायर्स फॉर परचेजेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कैश पे टू सप्लायर्स फॉर परचेजेस। तो इस तरीके से हम कैश पे टू सप्लायर्स फॉर परचेजेस निकाल लेंगे। उसके बाद जो चीज़ है वो है सैलरीज वेजेज एक्सपेंस या इनकम टैक्स एक्सपेंस। एक्रूवल्स के अंदर जो प्री पेमेंट हम निकालेंगे उसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी, चाहे वो सैलरीज एंड वेजेस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ऐसा कोई भी अकाउंट जो कि एक्रूवल्स में आता है। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, एक्सपेंस का हमें कहाँ से पता चलेगा, इनकम स्टेटमेंट से। हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे इस साल की, जिस साल की हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आएंगे और हम ये देखेंगे कि सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस कितना है, 112,600। ठीक है, क्योंकि एक रूल बेस्ड है, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि इतना आपने पे किया हो, क्योंकि ये अकाउंट्स एक्रूवल बेस्ड होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट जो शो हो रही है इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ये पे भी हुई। तो जो पे नहीं हुई होगी ऑब्वियस है वो पेबल कहलाएगी। अगर वो पेबल होगी तो वो आपके पास जो है वो बैलेंस शीट, इस साल की बैलेंस शीट के एंड पे या पिछले साल की बैलेंस शीट के एंड पे शो हो रही होगी। अगर दोनों में शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये सारी सैलरी आपने पे कर दी है। अगर पेबल का अमाउंट ज़ीरो है, फॉर एग्जाम्पल 1990 में भी और 1989 में, इसका मतलब है कि आपने कुछ भी पे नहीं करना, आप पे कर चुके हैं, इसको एज इट इज़ आप 112,600 को एज ए कैश आउटलेट ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक्रूवल सैलरीज एंड वेजेस पेबल लिखा है, यहाँ लिखा है 24,900 और 21,400।
ऐसा भी हो सकता है कि 1989 जैसे यहाँ बैलेंस 21 था 4 लिखा तो ये जीरो भी हो सकता है और एक तरफ अमाउंट हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1990 में जीरो हो और यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा हो। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर दोनों तरफ जीरो है तो इसका मतलब है ये अमाउंट हमने पे कर दी, क्योंकि पेएबल में कहीं शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पे हो गई। अगर ये पेएबल में शो हो रही है तो इसका मतलब है या तो अगर पिछले साल के पेएबल में तो इसका मतलब है पिछले साल पे नहीं हुआ, अगर इस साल के पेएबल में और पिछले साल के पेएबल में नहीं था तो इसका मतलब है पिछले इस साल पे नहीं हुआ। ठीक है, और अगर दोनों में है तो इसका मतलब है ये अमाउंट पिछले साल पे नहीं हुई और इस साल जो है वो इतनी अमाउंट ड्यू है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम सैलरी एंड वेज एक्सपेंस जो हमारे पास अमाउंट गिवन है इसमें ऐड कर देंगे जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो क्या हमें क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर। नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे हम, इसकी ट्रीटमेंट भी वैसे ही है। क्या करेंगे हम, ये सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है 112,600, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। तो क्या चीज़ आ जाएगी, टोटल पेबल्स इन दिस ईयर और टोटल पेबल्स इन दिस अकाउंटिंग पीरियड। जो पे नहीं हुए हैं वो कहाँ होंगे, वो एंडिंग बैलेंस में पड़े होंगे जो इस साल के एंड पे आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को बना लें और रटा नहीं लगाना है, सोचना है, समझना है, समझ के जब आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम सिंपली सैलरी एंड वेज एक्सपेंस है इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश पेड टू सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस। तो हमने ये किया है कि एक्रूवल बेस्ड एक्सपेंस जो था इनकम स्टेटमेंट से आएगा, ये याद रखना है आपने। और आपने इनकम स्टेटमेंट कौन सी यूज़ करनी है, 89 वाली यूज़ करनी है या 90 वाली यूज़ करनी है, हमने 90 वाली यूज़ करनी है क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 1990 की बना रहे हैं। तो जो करंट इनकम स्टेटमेंट होती है हम उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो बैलेंस हमारे पास गिवन है वो 112,600 का है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंसेस के बैलेंस ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल पेएबल्स आ जाएंगे। और हम उसमें क्या करेंगे, हमने निकालना है कि हमने कितना कैश पे किया है, तो हम लेस कर देंगे जो एंडिंग एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट सैलरीज एंड वेज एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस हो उसकी भी ट्रीटमेंट ऐसी होगी। एक्रूवल बेस्ड एक्सपेंस हमें हम इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्सपेंस का भी हमें इनकम स्टेटमेंट से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम वो जो अमाउंट वहाँ पे गिवन होगी हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई $21,000, बिगिनिंग बैलेंस जीरो था तो हमने जीरो एज इट इज़ लिख दिया और लेस कर देंगे हम इसमें से एंडिंग बैलेंस, तो ये आ जाएगा $11,700। तो जो भी एक्रूवल्स होंगे एक्सपेंसेस और उनके अगेंस्ट एक्रूवल्स, जहाँ पे भी एक्रूवल्स के अगेंस्ट हमने पेमेंट्स डिटरमिन करनी होगी तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जो एक्सपेंस गिवन होगा इनकम स्टेटमेंट में उसको लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस एक्रूड एक्सपेंसेस का यानी पेबल्स जितना होगा और उसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग बैलेंस एक्रूड एक्सपेंसेस का। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट जो भी होगा सैलरीज, जैसे यहाँ पे था सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट में हो सकता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये भी हो सकता है कि एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हो 1990, एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हो 1989 और उसमें कोई अमाउंट गेम होना दोनों में। तो और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे हमने सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस के अगेंस्ट हमने कैश पेमेंट निकाली है। तो उसमें भी एक्सपेंस आप लिख दोगे सबसे पहले, उसके बाद फिर ऐड करेंगे उसमें ओपनिंग और लेस कर देंगे हम उससे
जो भी क्लोजिंग बैलेंस एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पर जगह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये अमाउंट हमारे पास आ गई है। लेस कर देंगे कैश पेड टू सप्लायर्स, नंबर वन फॉर परचेजेस, फॉर टू एम्प्लॉयज फॉर सैलरीज एंड वेजेस, फॉर इंश्योरेंस, फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फॉर इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। टोटल कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और वो अमाउंट हमारे पास आ गई है 513,300। और इस इनफ्लो में से इस आउटफ्लो को लेस करेंगे तो हमारे पास रहेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बिजनेस एक जो है वो अच्छा चल रहा है, और वो जो इनफ्लोज हैं वो इजीली आउटफ्लोज को बीट कर रही हैं, और हमारे पास बल्कि सरप्लस में अमाउंट आ रही है। और इसमें लिखा है इंश्योरेंस की अमाउंट, एडवर्टाइजिंग की अमाउंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। दोबारा जाके इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखा है 48,600। तो क्या हमारे पास कोई 1990 या 1989 के जो बैलेंस शीट होगी, आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन होगी आपको, आपने देखना है उसमें, जैसे हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये दो हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स के ऊपर जो उन्होंने सिलेक्टिव हमें डाटा दिया है, तो क्या इसके अंदर कहीं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पेएबल के नाम से अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर तो हम वहाँ पे उसको जो है वो डिटर्मिन करेंगे कि हमने कितना कैश पे किया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, इसका मतलब है कि ना ना वो इस साल के एंड पे कोई पेबल है, ना ही पिछले साल के एंड पे कोई पेबल पड़ा हुआ था। तो ये जो एक्सपेंस शो हो रहा है इनकम स्टेटमेंट में, हमने इसके अगेंस्ट 48,600 जो है वो सारे का सारा पे कर दिया है। इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है। तो क्या हमने इस रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस, क्या हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, क्या यहाँ पे कहीं पे रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस कहीं लिखा है? कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता है? कोई बैलेंस यहाँ पे है 89 में, 90 में, दोनों में? अगर कुछ भी नहीं है तो इसका तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस की अमाउंट शो हो रही है, ये एक्सपेंस हमने जितना भी ये एक्सपेंस बन रहा है हमने उसको पे ऑफ कर दिया है। So there is no amount due at the end of this accounting period, and there was no amount due at the end of the previous accounting period. अब आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि 4200 अमाउंट की है। क्या इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई अमाउंट गिवन है? प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है। क्या चीज़ है? प्रीपेड इंश्योरेंस। 89 में 9400 है, और 1990 में बैलेंस कितना है? 6800। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? आप प्रोसेस के ऊपर सोचें कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आपने प्री पे किया है, आपने एडवांस में पेमेंट की है, जो आपने इंश्योरेंस परचेज की है, अभी वो एक्सपेंस नहीं बना लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है। और ये एक्सपेंस कैसे बनता है? जैसे जैसे इंश्योरेंस एक्सपायर होती जाती है, ठीक है? जैसे जैसे इंश्योरेंस एक्सपायर होती जाएगी वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अक्टूबर में इंश्योरेंस परचेज की थी 12 मंथ्स की, और 100,000 हमने पे कर दिया, तो वो अक्टूबर में जो पे किया है वो अक्टूबर के अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो हमने जो उसको पे किया था, वो पेमेंट तो जो है वो उसके अंदर आ गई, और वो पेमेंट जो है हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। लेकिन वो अभी एक्सपेंस नहीं बना है। एक्सपेंस कब बनेगा? जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, और 3 महीने की इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे ट्रीट होगी, क्योंकि 3 महीने एक्सपायर हो, और बाकी जो 9 महीने हैं उसके जो इंश्योरेंस के, वो जो बाकी अमाउंट बचती है वो आगे नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर
वहाँ पे जाके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हम ये नहीं देखते कि एक्सपेंस किस पीरियड को रिलेट कर रहा है, हम ये देखते हैं कि पेमेंट कब हुई है, यानी पेमेंट आपने कब की थी। अगर पेमेंट इस अकाउंटिंग पीरियड में हुई है तो वो कैश आउटफ्लो इस अकाउंटिंग पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आएगा, और अगर वो पिछले साल हुई थी तो फिर उसमें आएगा, यहाँ पे हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब ये 9400 जो है ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 9400 ये पिछले साल पे हुई थी और ये इस साल एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंदर इसको ये शामिल हो चुकी होगी। और जो 6800 है ये आपने इस साल पे किया है, ठीक है। तो ये जो आपने इस साल पे किया है ये अगले साल जो क्लोजिंग बचा हुआ है 6800 ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये अगले साल का एक्सपेंस है। यानी पेमेंट अभी हुई है और ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, ठीक है। पेमेंट जो कैश आउटफ्लो हुआ है वो इस अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है, लेकिन एक्सपेंस ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का है, ठीक है। तो अगर ये इस अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट हुई है तो इसके ये इस एक्सपेंस में शो नहीं हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ऐड कर देंगे और जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास कैश पेड फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा, कैश पेड फॉर इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा। अगर इसमें नहीं गिवन है तो इसको आप फॉर्मूला को अपने पास लिख लें, शायद आ गया। यहाँ पे आ गया फॉर्मूला, एक्रूअल बेस्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। तो ये अमाउंट कितनी आ गई $4200, और हमने इसमें क्या किया, ओपनिंग बैलेंस को लेस कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम उसको ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये पेमेंट इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्सपेंस इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, लेकिन कैश आउटफ्लो हुआ है इस अकाउंटिंग पीरियड में, आउटफ्लो हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे और ओपनिंग वाले को लेस करेंगे, क्योंकि 94 जो है वो पिछले साल की पेमेंट है और एक्सपेंस हमारे पास इस साल में शो हो रहा है, तो ये 4200 के अंदर जाके ऊपर जाके ये ऐड होगा, ठीक है। तो सॉरी लेस करेंगे, ये ऑलरेडी ऐड हुआ हो, जब हमने एडजस्टिंग पास करेंगे तो हम इसको ऐड करेंगे वहाँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ, इसका सिंपल रूल है प्रीपेड इंश्योरेंस का, हमने इसके अंदर जो अमाउंट हमारे पास इंश्योरेंस प्राइस गिवन होगी उसमें हम एंडिंग इंश्योरेंस को ऐड करेंगे और ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस को लेस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास कैश पेड फॉर इंश्योरेंस, जो कि $1600 की अमाउंट बनती है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझ में अगर नहीं समझ में आया अपने पास लिख लें, जब हमारा इंटरेक्टिव सेशंस होंगे तो उसमें हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आ गई है कि हाउ टू determine the cash inflows from the operating activities and how to determine the cash outflows from operating activities। उसमें हमने डिफरेंट हेड्स देखे कि कैश कस्टमर से कैसे रिसीव होगा तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमने पेमेंट्स करनी है तो हमने कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने डिटर्मिन किया है ये आ गया है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, कि हमने डायरेक्ट सोर्सेज बता दिए कैश रिसीव हुआ और कैश कितना हमने जो है वो पे किया, और उनका नेट जो है हमारे पास ये अमाउंट जो है वो बनती है। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो रिकनसाइल कर सकते हैं, और इसमें हम इनडायरेक्ट मेथड भी देखते हैं उसके थ्रू अगर हम करेंगे तो हम कैसे इसको
डिटर्मिन करेंगे कि कितना जो है वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। तो दोनों को सेम होना चाहिए, चाहे आप ये मेथड यूज़ करें डायरेक्ट मेथड, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें, दोनों तरीक़ों से आंसर उसका सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखी है नेट इनकम 95,500 और उसमें फिर हमने जो इंक्रीज़, वही मैंने कहा इंक्रीज़ अकाउंट रिसीवेबल्स को लेस और डिक्रीज अकाउंट रिसीवेबल्स को ऐड। तो ये 95,500 हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से हमने लिए ये अमाउंट। हम देख लेते हैं अगेन इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं दोबारा। तो 1990 की जो इनकम स्टेटमेंट होगी वहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे आपके पास गिवन है नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस। ये नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस ये अमाउंट 95,500 हमारे पास गिवन है। क्योंकि हम ये एक्रूल बेस्ड अकाउंटिंग है तो ये जो नेट इनकम है ये एक्रूल बेस्ड नेट इनकम है, ठीक है। दिस इज एक्रूल बेस्ड नेट इनकम। नाउ वी कन्वर्ट दिस नेट एक्रूल बेस्ड नेट इनकम इनटू कैश बेस्ड। क्या करेंगे, हमने क्या किया है, इंक्रीज अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने लेस किया। हमें कहाँ से पता चलेगा, इसमें जो डाटा हमें अवेलेबल होगा वो बैलेंस शीट से होगा। इसमें जो डाटा अवेलेबल होगा वो हमारे पास जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का डाटा गिवन है वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम बताएंगे। जैसे हमें ये नज़र आ रहा है इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लें, ये ओपनिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह इन्वेंट्री का डिफरेंस निकाल लें, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। इसी तरह पीपी इंश्योरेंस है, इनका डिफरेंस देख लें। अकाउंट्स पेबल एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस पेबल, और ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स के ऊपर जो बैलेंस शीट्स थी उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ से हमें ये समझने के लिए कि हम कैसे जो है वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं टू फाइंड द नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो हम आगे देखेंगे तो वो यहीं से इनके डिफरेंस लिए हैं, यानी दोनों में से आप इस 169 में से ये लेस करेंगे तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का पता चलेगा। नज़र आ रहा है कि 1990 में वैल्यू ज़्यादा है और इसमें 1989 में कम है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुए। किस अमाउंट से हुए, तो यहाँ पे हमने ये इंक्रीज ऑपरेटिंग इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने लेस कर दिया और इन्वेंट्री हमने दोनों कंपेयर किए तो डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज इन्वेंट्री हमने उसको ऐड कर दिया। करंट एसेट्स मैंने कहा था अगर वो इंक्रीज करते हैं तो हम उनको लेस करते हैं और अगर वो डिक्रीज करेंगे हम उनको ऐड करेंगे। और लाइबिलिटीज़ में जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको अगर वो इंक्रीज करेंगी तो उनको ऐड करेंगे और डिक्रीज करेंगी तो उनको लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिक्रीज इन्वेंट्री 79 इसको हमने ऐड किया, प्री पेट्रोल डिक्रीज हुए हमने ऐड किया, अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हुए तो हमने डिक्रीज किया, माइनस किया। और इसी तरह अक्रूड सैलरीज एंड वेजेस पेबल जो है वो इंक्रीज हुए तो हमने उसको ऐड किया। और अक्रूड इनकम टैक्सेस पेबल ये इंक्रीज हुए, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस एग्जिस्ट करता है हम उसको आंखें बंद करके एज इट इज़ उसको हम वहाँ पे नेट इनकम के अंदर ऐड कर लेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर। डायरेक्ट अप्रोच में क्योंकि हम उसको यूज़ ही नहीं करते, देखा होगा आपने, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कहीं यूज़ ही नहीं किया, वहाँ पे तो एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसे यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ता है। क्योंकि ये ऑब्वियस है कि जो नेट इनकम आई है ये रेवेन्यूज़ में से आपने एक्सपेंसेस लेस किए, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस हो के ये नेट इनकम आई है, तो इतनी अमाउंट से जो नेट इनकम आपकी कम शो हो रही है, जबकि हमने इतना जो एक्सपेंस है हमने जो है वो पे कैश के फॉर्म में पे नहीं किया, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। और हम जो है वो कैश निकालना चाह रहे हैं कि हमने कितना जो है वो कैश रिसीव किया और पे किया। तो नेट इनकम में से इसीलिए हमने इस अमाउंट को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेस कर दिया क्योंकि ये पेमेंट नहीं हुई, और जबकि ये लेस हो के ही आया था इसलिए हमने इसको ऐड बैक कर दिया ताकि वो एडजस्ट कर लें उसको कैश की फॉर्म। तो ये हमारे पास जब हमने इस नेट इनकम में से जो लेस और ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आ गई है वो आ गई 158,600, कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और इसको ये भी कहते हैं कि रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनकम टू नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको हम रिकंसाइल कर रहे हैं जो डायरेक्ट मेथड जो हमने यूज़ किया था। ये भी एक रूल है कि अगर डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं और उससे जब हम नेट कैश फ्लोज निकालते हैं ऑपरेटिंग की, तो फिर हम इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ करते हैं ताकि हम रिकंसाइल कर सकें कि हमने कहीं पे कोई गलती तो नहीं की। दोनों का आंसर जो है वो नेट कैश फ्लोज जो है वो सेम होने चाहिए।
अगर वो सेम नहीं है तो फिर हमने कहीं पे गलती की, क्योंकि यहाँ जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें बड़ा कम टाइम चाहिए होता है। आप जल्दी से सिर्फ उसका इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं और आप यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। लेकिन दोनों मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दोनों तरीक़ों से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना सकें। अगर कहीं जॉब करें तो वहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ डायरेक्ट मेथड ही से वो मांगेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आप एनालिसिस करके बताएंगे कि जो है वो कैश की पोजीशन क्या है, ऑपरेटिंग में कैश की पोजीशन क्या है। अगर वो कम आ रहा है यानी लॉस में, अगर वो सरप्लस की जगह अगर वो डेफिसिट की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो वो तभी पता चलेगा जब हमने डायरेक्ट सोर्सेज से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो डिटरमिन किए होंगे। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लोज और आउटफ्लोज हम कैसे टर्न करते हैं अंडर द डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे नेट ऑपरेटिंग जो नेट कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो हम कैसे टर्न करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मेरे ख्याल में आप लोग अपने रजिस्टर्स और पेंसिल पेन वगैरह रख लें, ताकि आप अपने खुद से अपने हाथों से सॉल्व करें। जितना आप अपने उसको प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है वो ये भी समझना पड़ेगा कि इसको हमें सॉल्व करने के ऊपर टाइम कम होता है, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। ये क्वेश्चन लंबे होते हैं और उनके लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे हमने देखना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ट्रांजेक्शन है, और कैसे हमने फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू